All right, Daryl, thank you for that. Well, massive traffic jams were witnessed at the Delhi-Noida borders after the farmers' Delhi Chalo march towards the Parliament complex today. And the farmers who are from Uttar Pradesh are pressing their 5 demands for compensation and benefits under the new agricultural laws. The planned protest coincides with the ongoing winter session of the Parliament and prompted the police to scale up security measures, including installing barricades, checking vehicles and diverting routes in Delhi NCR. The protesting farmers belong to the Bharatiya Kisan Parishad and other allied groups, including the Kisan Mazdoor Morcha and Samyukt Kisan Morcha as well. Well, protesting farmers have climbed over police barricades, is what we are learning, at the Dalit Prerna Sthal as they reached and marched towards Delhi over their various demands, is what we are learning. Simran, my colleague, is joining us live from the Chilla border at this point in time to give us more details. Simran, if you're there with us. Simran, if you can hear me, tell us what's going on at this point in time. How is the police managing this situation? Well, in fact, the situation right now is very concerning. As you can see, in fact, our glimpse behind me is what I'll show you. This is around nearly a gathering of 500 and 1,000 of farmers who have gathered at this border. The traffic that you were talking about is definitely because of this huge gathering under the banner of Samyukt Kisan Morcha, the Bharatiya Kisan Parishad as well. They've gathered here, in fact, with flags and with lathis as well to protest against the Noida authority, the administration and the Noida government, the Uttar Pradesh government as well, for not considering their demands for the valued compensation and for the legal benefits that they had been assured back then when the Noida redevelopment project was being talked about. And the picture right now is in fact of heavy police deployment. Well, I'll ask my camera person to show just a glimpse what the police deployment looks like. Right now the farmers are addressing the supporters and the workers here as they are hearing the dialogue, and they have marched in a huge group at this point where barricading is done. As you can see, there are cranes deployed. There are farmers who are just ready right now to march to that side and to reach Parliament. Well, in fact, I'll just go and speak to some of the farm leaders who have camped here since the morning. They are saying that they will continue their agitation till their demands are not met. आपकी ऐसी क्या-क्या मुख्य डिमांड्स हैं जिसमें आप भारी मात्रा में आए हैं, और अभी स्पेशली देखा जाए तो आप नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, पार्लियामेंट की पूरी तैयारी है? हमारी 10% की मुख्य डिमांड है जो पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसानों की एक मांग है। हम सारे किसान संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। हम सारे किसान पिछले 2 साल से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सारे किसान एक मिलकर एक बैनर तले संयुक्त मोर्चा बनाकर हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और कितने किसानों की अभी जहाँ पे देखा जा रहा है, और कितने किसानों की ऐसी तादाद है जिसमें आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग आएंगे और भारी मात्रा में जाने के लिए पूरा कूच करेंगे? जो इससे प्रभावित किसान हैं वो कम से कम 3 या 4 लाख किसान हैं हमारे, वो प्रभावित हैं। अभी तो मुख्य लोग अभी आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सारे 3-4 लाख जो किसान जितने भी गौतम बुद्ध नगर के हैं, हम सभी को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। तो क्या आप लोग आज मीटिंग के बाद यहाँ से जाएंगे नहीं वापस? अगर कोई ठोस डिसीजन निकला और हमारे जितने भी संयुक्त मोर्चा के नेता हैं जो भी वो डिसीजन लेंगे, अगर हमारे पक्ष में डिसीजन हुआ तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हम यहीं पे परमानेंट अपना तम्बू गाड़ देंगे। अच्छा, तो आप यहाँ से निकलने का बोल रहे हैं। आप बताइए आपकी क्या क्या ऐसी मुख्य डिमांड है? यूथ इन फैक्ट हैज कम इन लार्ज नंबर्स विद विमेन एज वेल। बताइए कि आप यंग हैं, यंग किसान हैं, क्या आपकी ऐसी मुख्य कारण है जिसमें इतना बड़ा दिल्ली कूच आप औरतों के साथ भी घर की लेके आए हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि जो कानून 2013 में पास हो चुका है कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा, और इनके जो अभी वर्तमान सरकार है, राजनाथ सिंह, सुमित्रा महाजन और भी जो इनके नेता थे, सबने उसको सपोर्ट करा और उस कानून को बनवाया।
आज उस कानून को मांगने के लिए किसान को 10 साल बाद निकलना पड़ रहा है कि उस कानून को लागू कर दो। तो मांग तो कुछ है ही नहीं। अगर 10% की मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, किसान क्या कर रहा है कि आप मेरी अगर जमीन ले रहे हो तो कम से कम उसका 10% हिस्सा मुझे दे दो ताकि मेरी गुजर बसर उसमें हो सके। शायद आपके समझ में आए 10% क्या चाहिए। 10% ये है कि अगर मेरी जमीन 10 बीघा जा रही है तो कम से कम 1 बीघा तो मुझे रहने के लिए दे दो। वो 10% पे भी इसकी नजर गनी हुई है प्रशासन की। ये चाहते हैं किसान से 3,000 रुपए मीटर में जमीन ले रहे हैं और उसको 30,000 रुपए मीटर से लेके 3 लाख रुपए मीटर तक बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट सब चार्ज की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? किसान केवल इतना ही तो अधिकार मांग रहा है कि भाई 10% उसको भी दे दो ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी गुजर कर सके उसमें। नोएडा पुलिस के खिलाफ भी आप लोगों ने बहुत मुहिम चलाई है, पर नोएडा पुलिस का ये कहना है कि आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करिए। यंग लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे भी काफी आए हुए हैं, तो आप लोग पीसफुली करिए और उसके बाद जो पीसफुली रेजोल्यूशन होगा उसमें जाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट है ना कभी भी विग्रस नहीं हुआ, ना ही हमने कभी किसी को परेशान करने की कोशिश करी है। ये किसान है ना, कोई भी जो यहाँ पर आया हुआ है, कोई भी सुखी मन से नहीं आया हुआ। मेरी खुद की 2009 में ज़मीन गई थी, जिसमें नोएडा अथॉरिटी का ये करार था कि अगर आज ज़बरदस्ती ज़मीन ली नहीं गई थी, ज़बरदस्ती हम ज़मीन ली गई और नोएडा अथॉरिटी ने ज़मीन ले टाइम में कहा था कि अब आप हमें ज़मीन दो, आपकी 10% ज़मीन हम डेवलप करके देंगे। लेकिन और उसके 5 साल बाद कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है देने के लिए, और कहते हैं अब आपको 5% के पैसे देंगे और 5% के बदले में प्लॉट देंगे। आज ना मेरा प्लॉट मिला है, आज मैं उस टाइम शायद 7-8 साल का रहूँगा जब ये बात, आज मैं 25 साल का हूँ, ना वो प्लॉट मिला ना वो पैसे मिले। और आज वो प्लॉट मिलने की बात, पैसे में भी बात करते हैं तो कहते हैं 22,500 रुपए गज के हिसाब से, मीटर के हिसाब से वो पैसे देंगे। और आज जब उसको प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए मीटर के हिसाब से अगर वो प्लॉट आज हमें मिलता है तो। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये है कि आबादी विनियमितीकरण, मैम मेरा प्लॉट, मेरी जो जमीन बच गई, आज मैं उसको बनाने चलता हूँ तो नोएडा अथॉरिटी अपना बुलडोजर लेके आ जाती है हमारे उस मकान को तोड़ने के लिए कि हमारी जमीन है, दादा लाई जमीन है, कोई हमने घेरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ना हुई हुई है। Appreciate you joining us. We're going to come back to you with more on this. Right now we have to take a break. We'll be right